consolidation of financial statements. That's what we are going to directly start with. Consolidation of financial statements. Now when I call financial statements, we have got two things. One is a profit and loss account, and second one is what? Balance sheet. First we'll start with balance sheet. Profit and loss, couple of questions are put in, but examination by and large, it's all about balance sheet. So even before we start, first is the format of the balance sheet itself. Revised schedule 6. First one, the first part of the balance sheet, equity and liabilities. So basically made up of two parts. First is known as equity and second one is known as what? Liability. And the second one is what? Assets. Equity is represented by shareholders funds, and shareholders funds के अंदर share capital, reserves and surplus, minority holding. एक और चीज, as far as consolidation is concerned, the first one will be share capital, second one will be reserves and surplus, and third one will be minority holding. Now consolidation will go by the process. थोड़ा बैलेंस शीट समझ ले पहले रफ आइडिया पे, फिर हम लोग आगे जाते हैं. बट कंसोलिडेशन का मतलब है बेसिकली हम एक कंपनी और उसके सब्सिडरी को कंसोलिडेट कर रहे हैं. तो सब्सिडरी अगर 100% हमारा ही है तो कोई माइनॉरिटी होल्डिंग नहीं है. बट इफ सम पार्ट ऑफ द थिंग बिलोंग्स टू द आउटसाइडर्स, देन वी हैव समथिंग दैट इज नोन एज व्हाट? माइनॉरिटी, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनॉरिटी होल्डिंग. So share capital, reserves, minority holding. Share capital I told you was represented by, second one is what? Divided into two. First one non-current, second one current. Non-current by definition anything which is repayable after 1 year, and anything which is repayable within 1 year will be known as what? Current. No rigid definitions as such. So you have to be very flexible as far as your finals are concerned. Even if your debentures question says that they are redeemable in the next year, the debenture will be specified under the head current liability. Anything repayable within 1 year will be known as current. So don't have your rigid definitions. It is very flexible. Above 1 year to non-current, and within 1 year to current. 4 heads inside this. First one, long-term borrowing, deferred tax liability, other non-current liability, and long-term provisions. 4 things. पहला कौन सा? Second one, third one, other current liabilities, and the last one. लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपके पेज पे प्रिंटेड है पूरा. I'll tell you where it is. Right now, let's not change it. Next one, इतना सामने तो नहीं दिखाऊंगा ना आपको, वरना वही सब चीज़ें दिखेगी आपको. So don't expect me to be so simple. Non-current एक बार रिपीट करेंगे हम लोग. First कौन सा? Second one, third one, and the last one. Exactly इसी का मॉकअप यहाँ पे किया गया. Long term borrowing, short term borrowing. Deferred tax liability की जगह पे यहाँ पे हम सारे specific current liabilities डाल देंगे. And there is one thing that is known as trade payables, represented by creditors and bills payable. Other non-current liability, other current liability. Long-term provisions, short-term provisions. Point to be kept in mind, provision have to be at the bottom. AS 29, पहले contingent liability, फिर एक provisions और फिर liabilities. तो यहाँ पे चिप चॉप करके other current liability, other non-current liability को नीचे मत डालना. The last word that has to end with is not as provisions. So यहाँ पे long-term provisions और यहाँ पे क्या? और फॉर्मेट फ्लेक्सिबल है इन द सेंस अगर कोई हेडिंग नहीं आ रहा है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव सीन एट लॉट ऑफ प्लेसेस पीपल एट कंसोलिडेशन दे डायरेक्टली गो प्रिपेयर द बैलेंस शीट फर्स्ट और फिर उसके अंदर फिलअप करते हैं. डोंट डू दैट, यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम. बिकॉज आई टेल यू नॉन करंट लायबिलिटी तो रेयरली कुछ दिखेगा आपको. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा. आई हैव नेवर सीन एनी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एनी अदर नॉन करंट लायबिलिटी, एंड लास्ट में नथिंग एट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वेरी रेयरली. सो अगर वो हेडिंग्स है ही नहीं तो लिखो ही मत. बैलेंस शीट ने कहीं ऐसा नहीं किया कि इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड. नाउ दे आर नॉट शेड्यूल्स, दे आर नोट्स. Schedules were rigid, they were numbered. Notes are not rigid, notes are not numbered. Are we clear? So be flexible with them also. First one, यहाँ पे कौन सा आएगा?
deferred tax liability, other non-current liability, and last one. The only thing I'm adding up new to your balance sheet is a minority shareholding here, nothing else. Next one is what? Assets. Again divided into two parts. First one is non-current and second one is known as what? Current. First one, non-current में पहला fixed assets. Under fixed assets we have tangible and intangible. Next one, fixed assets के बाद investments. Investments के बाद deferred tax assets. That is the third one. Fourth one, loans and advances. Loans and advances पहले और उसके बाद क्या आएगा? Other non-current assets. 5 heads. Mock it up here. First one, fixed asset का कोई mocking होगा? Investments, long term, investments, short term. Deferred tax asset, specific अपना current asset. Trade receivable के पहले inventory, trade receivable, cash and cash equivalent. वहाँ पे ब्रेकअप में एक ही चीज़ था, यहाँ पे ब्रेकअप में कितना चीज़ है आपके सामने? 3. Inventory पहले, second one trade receivable and third one cash and cash equivalent. Are we clear with that one? Next one, loans and advances, short-term loans and advances. Other non-current assets, other current assets. Are we clear? Profit and loss account, debit balance, अगर loss दिख रहा है तो reserves and surplus, minority interest में split हो जाएगा shareholders fund में. Fictitious asset, that is miscellaneous expenditure. Either we should post it to other non-current assets or other current assets. If we assume it to be written off over the period of 12 months, it goes to other current assets. Not to be written off over the period of 12 months, other non-current assets. Are we clear with that one? Can we start with the basic process then? Page number 49. Now, whatever is there in your consolidation is basically in the first 3 pages of your theory. That's the only theory I have presented to you guys. So you need to go through that point by point, एकदम आराम से. Classes में भी हम ऐसे ही करेंगे. But in case you are stuck up anywhere within consolidation, that first 3 pages are more than enough. Are we correct? Now, since we are meeting for the first time, I don't know how many of them are attempting for the first time or second time or whatever. A genuine request as to whatever you have done till now na, has to be forgotten. आप कहाँ से आ रहे हो, कौन से क्लासेस से आ रहे हो, वो मैं पूछ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. पर अगर आपने कुछ किया है तो यू हैव टू फॉरगेट दैट, बिकॉज कंसोलिडेशन सॉल्व करने के बहुत सारे पैटर्न्स हैं और आपने जो पैटर्न्स किया होगा वो डेफिनेटली मुझसे मैच नहीं करेगा फिलहाल तो. सो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट रिमूव योर बैकलॉग. दैट बैकलॉग वाज नॉट दैट गुड इनफ एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर. सो यू नीड टू टेक अ न्यू बैकलॉग नाउ and let's not hope that it's a backlog. करेक्ट कि नहीं? बिकॉज प्रोसेस अलग होता है तो आपका माइंड वहीं पे वेवर करेगा कि हम पहले ये करते थे, हम आज ये कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है. तो आप पहले जो करते थे वो आप सब भूल जाना. अगर आपको रीजन चाहिए तो मुझे बाद में मिल लेना. बट अदरवाइज द प्रोसेस दैट वी आर वर्किंग ऑन इज गोना बी मोस्ट सिंपलेस्ट एंड दैट्स व्हाट आई हैव टारगेटेड ऑन. आर वी क्लियर? एंड पर्टिकुलरली सिंस वी आर starting with the chapter known as consolidation. Ultimately answers have to match, बट प्रोसेस बहुत अलग होता है. एंड स्टिल स्टेइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ AS, बिकॉज अकाउंट्स का चैप्टर कर रहे तो वी हैव टू बी विद इन द लिमिट्स ऑफ AS. आर वी क्लियर? कैन वी स्टार्ट? चलो. 1 करना क्या है, 2 कंपनीज का बैलेंस शीट दिया है और हम लोग को एक होल्डिंग कंपनी ढूंढना है, एक सब्सिडरी कंपनी ढूंढना है. By definition, the company which holds the part of another company, 50% or more, will become what? Holding, and the another company will become what? तो पूरे subsidiary company को holding में merge करना. That's what we have to do. So that's a basic thing. First one, according to Section 4 of Companies Act 1956, a company becomes a subsidiary of another if the another one holds the composition of its board of director or holds more than half of nominal value or equity, or in case of companies where preference shareholders have equal voting rights with equity shareholder and controls more than half of total voting power. A company which is subsidiary of a company which in turn is subsidiary of another is considered to be subsidiary of ultimate holding company. Now one holding company, they have one subsidiary and that subsidiary has got another subsidiary
then the third subsidiary will also be known as subsidiary of the holding. Continuation, for example, if A Limited is a subsidiary of B, which is the subsidiary of C, then A would be the subsidiary of C also. Are we clear with that one? Because जब आप consolidation करेंगे तो holding company में आप सारे subsidiaries का consolidation करेंगे. Of course appropriate consolidation होगा, but अगर यहाँ पे मैं A की बात कर रहा हूँ तो A will have to take B also into consideration, it will have to take C also in consideration. Next, steps to be considered. First one, balance sheet of the holding and the subsidiary company must be prepared on the uniform date and with common accounting policies. That's the first thing we start with. Consolidation cannot start unless and until we have got two balance sheets as on the same date, and both the balance sheets are prepared according to same accounting policies. For example, debris policies, for example, inventory valuation. Now I have got two companies. One company is following SLM, another company is following WDV. Consolidation start ही नहीं हो सकता. Are we clear with that one? तो सबसे पहले तो दो बैलेंस शीट्स बनाइए जो एग्जैक्टली सेम डेट के हो और सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करते हो. नाउ वन कंपनी इज फॉलोइंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड एज 31st March एंड सेकंड वन इज फॉलोइंग एट 31st December. सो वी हैव टू ब्रिंग इट देम टू द लेवल फर्स्ट, फिर ही कंसोलिडेशन हो सकता है. तो कंसोलिडेशन स्टार्ट करने के पहले आपको सबसे पहले तो यही इंश्योर करना है कि वो दोनों बैलेंस शीट सेम डेट पे बनाए गए हो, एंड सेकंड ये इंश्योर करना है कि दोनों ही बैलेंस शीट सेम पॉलिसी से बनाए गए हो. ऑफ कोर्स टू स्टार्ट विद डायरेक्टली हम इतने हैवी डोज से चालू नहीं करेंगे, बट ये तो फर्स्ट पॉइंट है. बैलेंस शीट सेम डेट, पॉलिसीज सेम. और पॉलिसीज फिलहाल मुझे दो स्ट्राइक हो रहा है, वन इज डेप्री एंड सेकंड वन इज व्हाट, इन्वेंट्री वैल्यूएशंस. करेक्ट है. नेक्स्ट वन, सेकंड, दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स विद नाउ. 2, कंबाइन all assets and liability at its 100% values. But while doing so, the intercompany transactions are to be eliminated. Combine all assets and all liabilities at 100%. पूरा दो बैलेंस शीट रखो, उसको 100% ऐड करना है, except the points that we are going to discuss now. दो बैलेंस शीट, that's what I said, start visualizing them. You have got two balance sheets. हमें सब कुछ क्या करना है, 100% ऐड करना है, except the points we are going to discuss. Correct है? First things, jump onto a transaction on point number C, page number 50 पे. First one, investment in subsidiary appearing on the asset side of holding company and correspondingly appearing as an equity share capital on liability side of subsidiary company should be adjusted as under. Now two balance sheets, one is company A and second one is company B. A and what? B. First one, share capital, reserves, loans, current liability, fixed assets, investments, current assets, miscellaneous expenses. Perfect. First one, investments, assuming A is a holding company and B is a subsidiary company. So if I say A is a holding company, can I say holding company के books में B का shares होगा under the head known as what? Investments. Are we clear with that one? Now let's say I am writing here that I am holding 10,000 shares at 1,20,000 and B has got a total of 20,000 shares and the capital is 2 lakhs. Are we clear with that one? And I am holding how many shares? Am I holding exactly 50%? Put it a little bit higher so that we avoid the confusion. Kitna percent? More than 50 now? So सबसे पहले सब कुछ ऐड करना है except 1, 2, 3 to start with. First है share capital, second reserves और third यहाँ से अभी कैसे डील करेंगे हम इसे. First one, share capital will have holding and we'll have what? Subsidiary. Holding company अपना share capital अपना,
ये सीधा बैलेंस शीट में हम लोग जाके लिख देंगे शेयर कैपिटल अमाउंट डैश अपना शेयर कैपिटल मीन्स यू हैव टू गेट कन्वर्सन विद माय वर्ड्स व्हेन आई से अपना इट मीन्स होल्डिंग कंपनी सो अपना शेयर कैपिटल अपना ही है और अभी किसका शेयर कैपिटल स्प्लिट करना है हम लोग को सब्सिडियरी का सो हम जाके लिखेंगे सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल अमाउंट कितना है 2 lakhs कितने शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है ये 20,000 में से मेरे पास कितना शेयर्स है 11,000 shares मेरे पास है so if I am holding 11,000 shares can I say 9,000 shares are held by outsiders and the shares that are held by outsiders are known as minority holding अगर परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो what percentage of share capital I am holding 55 2 lakh का 55% निकालिए calcies out please 1 lakh what 1,10,000 किसका है और 90 किसका है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाके लिखेंगे शेयर कैपिटल 90 ये 1,10,000 को पिक करेंगे यहां से ये अपना शेयर कैपिटल अपना होल्डिंग है वहां पे बट अपने शेयर कैपिटल में नहीं लिखना है इसे इसका ट्रीटमेंट वहां लिखा हुआ है मैंने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी appearing on the asset side of the holding company and correspondingly appearing as a equity share capital on the liability side of the subsidiary company should be adjusted as under मैं दो चीज दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे one is this 1,10,000 and second one is this 1,20,000 read the 3 lines again first one investments in the subsidiary company appearing on the asset side of the are we talking about 1,20,000 and correspondingly appearing on the equity share capital of the liability side of the subsidiary company am I talking about this 1,10,000 should be adjusted as under first one investments book value that is appearing on the asset side of holding company how much are investments appearing on the holding company 120 are we clear with that one continuation less what so less the paid up value what is the paid up value 110 120 minus 110 answer comes to how much this 10,000 is known as goodwill this 10,000 is known as what of course if the answer comes on the negative direction the answer will be known as what capital reserve perfect है ये करके ना I am doing away with your normal workings people who are attending it for the second time somewhere else something that is known as cost of control हमारे कैलकुलेशंस में कहीं पे भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बेस्ट है सेकेंड टाइम कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का वर्किंग नोट गायब कर रहा हूं मैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को रिप्लेस करके हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व को ला रहे हैं एंड यू विल अंडरस्टैंड स्लोली एंड स्टेडीली डिड यू अंडरस्टैंड वर्किंग वन फर्स्ट पूरा बैलेंस शीट ऐड करना बिंदास कोई टेंशन नहीं लेनी है एक्सेप्ट वन अपना शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा बैलेंस शीट और सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल वर्किंग नोट में डालेंगे उसको स्प्लिट करेंगे बिटवीन द वन दैट इज होल्डिंग एंड सेकेंड वन इज व्हाट माइनॉरिटी को उठा के माइनॉरिटी में डाल दो हम लोग जो होल्ड कर रहे हैं वो कहां से माइनस करें हम लोग उसमें से शेयर कैपिटल और आंसर जो आएगा वो क्या बनेगा हमारा गुडविल या कैपिटल रिजर्व नेक्स्ट वन कंटिन्यूएशन नोट द पोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी नॉट हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी एंड हेल्ड बाय द पर्सन other than holding company will be shown as minority interest in what CFS मतलब कौन से कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं वहां पे वो कहां दिखेगा आपको नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर 6 जंप टू पॉइंट नंबर 6 ऑन पेज नंबर 51 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व कैन यू सी दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व दिस इज द सेकंड पॉइंट आई एम पिकिंग अप ये दो पॉइंट्स के बिना हम क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं कर सकते इसीलिए वी आर पिकिंग अप देम फर्स्ट वन इज कैपिटल सेकंड वन इज व्हाट रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व ऑल द रिजर्व्स वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी शुड अपीयरिंग CFS अंडर द हेड व्हाट फिर से एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी शुड अपीयर इन CFS अंडर द हेड मतलब हमारे रिजर्व्स वो हमारे
होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो जनरल रिजर्व है, वो सीधा कहां पे चला जाएगा? अंडर द हेड रेवेन्यू रिजर्व्स। हमारे रिजर्व्स हमारे, हमें नहीं खेलना है इसके साथ। पॉइंट नंबर बी, अब हम कौन से रिजर्व्स के साथ खेलेंगे? सब्सिडरी। तो सब्सिडरी के रिजर्व्स की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व appearing in the balance sheet of a subsidiary company should be first classified as created prior to acquisition and created subsequent to acquisition। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। किसके रिजर्व्स को पिक कर रहे हो? रिजर्व। लेट्स से P&L अकाउंट, एंड लेट्स से P&L अकाउंट इज 50,000। इसको वर्किंग में ट्रांसफर किया, सब्सिडरी कंपनी का, बिकॉज अपना तो अपना ही है, अपने को कुछ टेंशन नहीं है। किसके रिजर्व के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं? तो सब्सिडरी का रिजर्व P&L दिख कितना रहा है? पहले से स्प्लिट करो, प्री पोस्ट। प्री मींस created prior to acquisition and post means created after acquisition. Read that line. The profit and loss account and general reserve appearing in the balance sheet of the subsidiary company should be first classified as created prior to acquisition and created subsequent to acquisition. Reserve created prior to acquisition will be called as pre, while reserve created subsequent to acquisition will be called as what? Pre. आई एम जस्ट डिवाइडिंग इट रैंडमली, वो हम क्वेश्चन में जाके देखेंगे कैसे डिवाइड करता है। 20 एंड व्हाट? 30। 20 क्रिएटेड व्हाट? प्रायर टू एक्विजिशन। 30 क्रिएटेड व्हाट? पोस्ट एक्विजिशन। प्री, फिर से एक बार स्प्लिट बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ व्हाट वाज द शेयर होल्डिंग पैटर्न वी एस्टैब्लिश्ड हियर? 55%। दैट मीन्स ये 20,000 का 55% होल्डिंग का और 45% माइनॉरिटी का। सेम पोस्ट में भी 55% होल्डिंग का और 45% माइनॉरिटी का। सो पहले तो हमें डिवाइड करना है प्री और हमें डिवाइड करना है पोस्ट, फिर हमें प्री को डिवाइड करना है होल्डिंग माइनॉरिटी, पोस्ट को डिवाइड करना है होल्डिंग माइनॉरिटी। कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? इन द रेशियो ऑफ शेयर होल्डिंग, जो डेफिनेटली मैंने एग्जांपल में 55% सेट किया। होल्डिंग कंपनी का शेयर इन प्री शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी गोज टू माइनॉरिटी। होल्डिंग कंपनी का शेयर इन पोस्ट विल गो टू रेवेन्यू रिजर्व्स एंड माइनॉरिटी का शेयर विल गो टू माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के शेयर पे अपने को जाके खेलना नहीं है कि ये प्री है या पोस्ट है। माइनॉरिटी का शेयर है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गोज टू माइनॉरिटी। बट होल्डिंग का प्री का शेयर कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व। और होल्डिंग का पोस्ट का शेयर कहां जाएगा? रेवेन्यू रिजर्व्स। रीड दैट पार्ट। प्री, holding share in pre-profit is transferred to capital reserve and outsider share is transferred to what? Minority. Post, holding company share in the post profit is transferred to revenue reserves and outsider share is transferred to what? Simple है। एक बार फिर से रिजर्व कहां से स्टार्ट करोगे आप? रिजर्व किसके रिजर्व्स की बात कर रहे हो आप? सब्सिडरी के रिजर्व्स की बात कर रहे हैं। किस में स्प्लिट करेंगे हम उसे? प्री एंड पोस्ट। प्री को किस में डिवाइड करेंगे हम लोग? बोलिए। यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिस्टिक्स। पहले हम वैल्यूएशन सीख ले आज थोड़ा फर्स्ट लेक्चर में, फिर हम पूरा जाके एएस के साथ इस पे काम करेंगे। बट फिलहाल हम बेसिक सीख लेते हैं। हमें बैलेंस शीट बनाना तो आ जाए, पहले 16 मार्क डाल देते जेब में और फिर सारे काम करेंगे हम। प्री का शेयर कहाँ जाएगा? थोड़ा बहुत तो सेंस अभी भी बन जाए ना, बिकॉज आई वॉज नॉट होल्डिंग दैट कंपनी प्रायर टू दैट। नाउ व्हेन आई एक्वायर दैट कंपनी एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी देन, whether it is pre or whether it is post, it belongs to me. But the question was I holding that company at the time when they created those reserves? No. So this cannot go to my revenue reserves. This has to go to what? Capital reserve. It's a pre-acquisition profit. Are we clear with that one? Some people argue at this level to start with also कि सर तभी तो हम थे ही नहीं तो हमारा ही नहीं होगा. But you need to understand the day I buy that part of the company, everything relating to that company from the first day onwards to today is belonging to me now. Are we clear with that one?
The lady that I learned this chapter from used to say this is a marriage. And in a simple way, then girl cannot say that ये तो मेरा बैंक अकाउंट है, इसको हाथ नहीं लगाने का. बरोबर है कि नहीं भाई? Now your bank account also belongs to me. अब सब definitely my bank account also belongs to you. So don't take it other way, right? खाली. But what happens is, can I term it as my revenue profit even if I consider the part of the bank account to be belonging to me? No, because I was not contributing anything to that deposits there, na? So it has to be belonging to me. It does belong to me, but not in the revenue in terms of capital. और फिर हम लोग जाके थोड़ी और डिस्कशंस करेंगे उस पर. बट फिलहाल प्री एंड व्हाट पोस्ट. प्री को किस में डिवाइड करें? होल्डिंग, माइनॉरिटी, परसेंटेज वाइज. होल्डिंग, माइनॉरिटी, होल्डिंग शेयर, कैपिटल, होल्डिंग शेयर, रेवेन्यू, माइनॉरिटी शेयर, माइनॉरिटी. क्लियर है? 1 पूरा बैलेंस शीट ऐड करना है एक्सेप्ट शेयर कैपिटल निकाला, रिजर्व्स निकाला, इन्वेस्टमेंट निकाला. कैन वी प्रैक्टिस दिस? क्वेश्चन नंबर 1. Page number 53, practical questions, and question number 1. Following is a balance sheet of R and M as on 31st March 2013. First balance sheet is R and second balance sheet is M. Two balance sheets. First one share capital, second one reserves, and third one is what? Liabilities. Assets mein first one fixed assets, second one shares of M, 100% shares of M. Can I say M is my 100% subsidiary? Holding कौन हुआ? R के ऊपर लिखो H और M के ऊपर लिखेंगे S. और ये प्रैक्टिस मेंटेन करेंगे अब से. Continuation. Current assets and last one is miscellaneous expenditure. Prepare what? चलो first things first. अब पूरा पैटर्न देखेंगे. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. But otherwise the pattern has to be simple enough. Question number 1 it is. On first page we have to prepare something that is known as balance sheet. That's my page number 1. देख लो पहले ना भाई, अपने को जाना है कहीं पे. This is balance sheet full page. यहाँ पे और कोई काम नहीं होगा. Second page से working notes. Working note number 1, goodwill. That is working note number 1. Working note number 2, capital reserve. Working note number 3, revenue reserve. Working note number 4, minority interest. This is page number 2 gun. Page number 3, working note number 5, share capital. Working note number 6, reserves. This is static. आप कुछ भी कर लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, मैं ये सारे वर्किंग नोट्स ऐसे ही रखूंगा. Absolutely static. Are we clear with that one? वर्किंग नोट नंबर 1 कौन सा है हमारा? बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लेस बुक वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल. दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 1, जो हम लोग ने पॉइंट नंबर 2C पे पढ़ा. रिजर्व्स को जो स्प्लिट करना है वर्किंग नोट नंबर 6. शेयर कैपिटल को जो स्प्लिट करना है वर्किंग नोट नंबर 5. Are we clear with that one? But otherwise everything has to remain static. और यूनिफॉर्म काम करेंगे तभी मैचिंग भी कर पाएंगे. आप एग्जामिनेशन में भी यही फॉलो करोगे. तो ऐसे ही दिखेगा वो. फर्स्ट पेज पे बैलेंस शीट होगा और सेकंड पेज से सारे वर्किंग नोट्स आ जाएंगे. क्लियर? आई कैन वर्क ऑन दिस. फर्स्ट वन, द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ R and M एज ऑन 31st March 2013. बैलेंस शीट का किसका है? R का बना रहे हो बैलेंस शीट, M का बना रहे हो? Along with
its subsidiary known as what? M. This has to be your title, balance sheet of R Limited along with its subsidiary M as on 31st March 2013. First one, what is the first part of the balance sheet? So first one, equity and what? Liabilities. What is the first part of equity and liability? Shareholders funds. What is shareholders funds का first part? Share capital. चलो, how much is the share capital? अपना शेयर कैपिटल अपना, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है. सो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 एंड अमाउंट कितना? 50. दैट इज अपना शेयर कैपिटल इज अपना. नेक्स्ट वन, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है? तो ये शेयर कैपिटल को स्प्लिट करना है हमें. ये कहाँ पे जाएगा? वर्किंग नोट नंबर 5. इसे स्प्लिट करेंगे. होल्डिंग कंपनी में जाके देखो कितना होल्ड कर रहे हो आप. So if holding company is 100%, then what is subsidiary company? 0. That means can I say entire 30 I am only holding? और ये जो अपना होल्डिंग है यहाँ से ये जाएगा बुक वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, और यहाँ से जो माइनॉरिटी का शेयर बनता है वो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट. फ्लो समझना है आपको. पहले ये शेयर कैपिटल हमने यहाँ पे लिखा है, इसे स्प्लिट किया. यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का जो शेयर बनता है वो वर्किंग नोट नंबर 1, और जो माइनॉरिटी का शेयर बनता है वो वर्किंग नोट नंबर 4. इफेक्टिवली टेकन केयर ऑफ. डन. नेक्स्ट वन, शेयर कैपिटल के बाद व्हाट इज सेकंड? रिजर्व्स. रेवेन्यू रिजर्व्स. रिजर्व्स, हाउ मच आर रिजर्व्स? 10. अपने रिजर्व्स है ना, अपने सारे रिजर्व्स अपने ही हैं. यहाँ पे जनरल रिजर्व लिख दे, पीएनएल लिख दे, कुछ भी लिख दे, ऑल रिजर्व्स आर माइन. सो अपने रिजर्व्स अपने, वो जाके रेवेन्यू रिजर्व्स में लिख दोगे आप. सब्सिडरी का रिजर्व्स है ही नहीं. अगर सब्सिडरी का रिजर्व्स होता तो हम सब्सिडरी का रिजर्व्स लिखते वर्किंग नोट नंबर 6 पे. उसे कैसे डिवाइड करते हैं? प्री एंड पोस्ट. प्री को कैसे डिवाइड करते हैं? होल्डिंग माइनॉरिटी. पोस्ट को कैसे डिवाइड करते हैं? फिर होल्डिंग का शेयर प्री में वर्किंग नोट नंबर 2, होल्डिंग का शेयर पोस्ट में वर्किंग नोट नंबर 3, माइनॉरिटी का शेयर ऐड कर दो वर्किंग नोट नंबर 4. इज इट क्लियर? प्रोसेस समझ रहा है? कंटिन्यूएशन. नेक्स्ट वन, रिजर्व्स. शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व्स, ये कंप्लीट होगा तब हम लिखेंगे वहां पे. रिजर्व्स के बाद क्या आता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट. आई गेस यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनने का कोई चांस नहीं दिख रहा है मुझे. रिजर्व्स फिलहाल मैंने यहाँ पे रखा है, इसको क्लोज करूंगा तब लेके आऊंगा मैं यहाँ पे. क्लियर है? व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? शेयर होल्डर्स फंड. व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? पर मुझे तो बैलेंस शीट में सिर्फ क्या दिख रहा है अभी? सीधा लायबिलिटीज लिख दूं, बिकॉज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्चुअली, इसलिए मैंने कोई पार्ट्स नहीं डाला है. सो आई एम सेइंग सेकंड पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट इज व्हाट? आई एम नॉट क्लासिफाइंग देयर करंट, देयर नॉन करंट. उसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है, बिकॉज वैसे ही कुछ सीखना नहीं है. क्या करना है उसको? कर दो. 40 + 20 डन. सिंपल. Everything has to be added. The point number 1 was everything has to be added except share capital, reserves and investment. Next one, on the assets, what is the first thing? Fixed assets. So the balance sheet part is known as what? Assets. Assets mein first part non-current assets. Non-current mein first part fixed assets mein first part. So fixed assets का first part हम लिखेंगे tangible. वो लोग अगर क्वेश्चन में फिक्स एसेट वर्ड यूज करें तो हम लोग अज्यूम करेंगे दे ऑल आर टैंजिबल. गुडविल बनने का चांस यहां से बनेगा अगर गुडविल पहले से होगा तो उन्होंने दिया होगा. अदरवाइज वी शुड अज्यूम दैट देयर असेट्स दे आर गिविंग यू इज ऑल व्हाट? क्या करें? 50 40 90 डन. नेक्स्ट वन, ये इन्वेस्टमेंट्स कहां लेके जाए हम लोग? वर्किंग नोट नंबर 1, book value of the investments held. How much are the investments we are holding? Goodwill or capital reserve? Nil. Because we are holding 100% of the company and that too at the same value.
मतलब कंपनी का इशू ही हमारे से हुआ एक्चुअली. Continuation. Current assets. So I'll directly jump onto the second head, and that is known as what? Current assets. How much current assets they have? अपने पास कितना है? उसके पास क्या करना है? तो ऐड कर दो. कितना हो गया? काम खत्म. बैलेंस शीट का टोटल. बाकी ना असेट का टोटल तो कर सकता हूं ना. कंटिन्यूएशन. ये क्या आएगा? रिजर्व्स. डन ना. सो टोटल कितना? 10. भूलूंगा नहीं मैं सर. 10 120. अकाउंट्स ना इतना कमी ना हो तो बैलेंस शीट कहीं से भी टैली करूंगा. डज इट टैली? 3 things you are learning in this question. 1, split the share capital. 2, split the reserves. 3, the investment. And we'll practice one more question like this. Can you copy this? Are we done? Can I take the next one? Question number 2 on same page. The following is the balance sheet of R&M as on 31st March 2013. Same things again. Share capital, reserves, liabilities, total. First one, assets में fixed assets, shares of M
कितना परसेंटेज होल्ड कर रहे हैं अभी? सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग दैट पार्ट इनटू इट. नेक्स्ट वन, सेकंड इज व्हाट? Current assets, and the last one is what? Miscellaneous expenses. Help me with that case now first. Everything else will remain same only ना? यही पार्ट पे हम लोग खाली वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं. So first one, working note 1, 2, 3, 4, 5 and what? 6. First one, आप हेल्प करेंगे मुझे अभी. शेयर कैपिटल. आर का शेयर कैपिटल कहाँ पे? बैलेंस शीट. कितना? अपना शेयर कैपिटल अपना महीना. सब्सिडरी का कितना है? 200 में क्या करूँ अभी मैं? होल्डिंग का कितना परसेंटेज है? और माइनॉरिटी? तो होल्डिंग का कितना हुआ? माइनॉरिटी 160 कहाँ लेके जाऊँ? शेयर कैपिटल 160 40 शेयर कैपिटल अमाउंट कितना? 40. क्लियर है? नेक्स्ट वन, सेकेंड, रिजर्व्स. अपने रिजर्व्स अपने डायरेक्ट बैलेंस शीट में नहीं जाएगा बिकॉज रिजर्व्स में वर्किंग करना है. दैट्स व्हाई आई पुट अ वर्किंग नोट नंबर 3 फॉर यू. सो वो रिजर्व्स डायरेक्ट बैलेंस शीट मत लेके जाना. शेयर कैपिटल में क्या कुछ करना नहीं है ना. सो अपना शेयर कैपिटल पोस्ट करके रख दिया सीधा बैलेंस शीट में, बट रिजर्व्स यू स्टिल हैव टू प्ले विद. So अपना रिजर्व्स विल गो टू रेवेन्यू रिजर्व्स. आई एम राइटिंग रिजर्व्स. अमाउंट बोलो. अच्छा, अब सब्सिडरी का रिजर्व्स 100 को स्प्लिट करें किस में? बट फिलहाल इस क्वेश्चन में वो इंट्रोड्यूस नहीं किया मैंने आपके साथ, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सब पोस्ट है. अजम्पशन है. ऑफकोर्स जब हम एक्चुअल क्वेश्चंस करने जाएंगे तो वो तो आने ही वाला है, बट स्टिल आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग दिस एट दैट क्वेश्चन. सो आई एम अज्यूमिंग दिस 100 टू बी व्हाट? पोस्ट. अब क्या करें? होल्डिंग एंड व्हाट? माइनॉरिटी. होल्डिंग कितना? 80 एंड माइनॉरिटी कितना? होल्डिंग का शेयर रिजर्व्स, और ये रिजर्व्स किसका है? एम लिमिटेड. आर वी क्लियर विद दैट वन? आई डू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग कि हम एम का कुछ भी लिख रहे हैं यहाँ पे तो हम एम लिमिटेड लिखा करें, एक्सेप्ट द माइनॉरिटी बिकॉज वो पता है वहीं पे होगा वो. Are we clear with that one? How much is that? 80. और माइनॉरिटी का शेयर, सो यहाँ पे जाके लिखेंगे हम लोग रिजर्व्स एंड अमाउंट कितना? 20. क्लियर है? नेक्स्ट वन, क्या करें लायबिलिटीज को? ऐड. टोटल बोलो 250. डन. नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स क्या करें? ऐड. अमाउंट 850. करेक्ट है? नेक्स्ट वन, ये कहाँ लेके जाए? वर्किंग नोट नंबर 1, 210. 210 माइनस 160, 50 ऑफ गुडविल. 50 ऑफ. और सेकेंड वर्किंग नोट किसका दिख रहा है आपको? वो धीरे धीरे इन्वेंशन में आएगा, बट 1 और 2 का नेट करके पोस्टिंग करेंगे बिकॉज एक ही बैलेंस शीट में वी कैन नॉट शो द गुडविल एंड वी कैन नॉट शो द. सो वर्किंग नोट नंबर 1 पे या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा. वर्किंग नोट नंबर 2 इज श्योरली फॉर कैपिटल रिजर्व. उनका नेट करके हम पोस्टिंग करेंगे. इफ इट कम्स टू कैपिटल रिजर्व इट गोज टू रिजर्व्स एंड सरप्लस. इफ इट कम्स टू गुडविल इट गोज टू व्हाट? इंटैंजिबल एसेट्स. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे हमारे पास टैंजिबल है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? इंटैंजिबल एसेट्स, बिकॉज और कोई वर्किंग दिख नहीं रहा है मुझे. अमाउंट कितना है? 50. What is the next one after that? So 2, that is current assets. Amount बोलिए. ऐड कर दिया सिर्फ ब्लैंक. अमाउंट 4, 850 प्लस 50 900 प्लस 490 1390 13. कंटिन्यूएशन, और कुछ नहीं बचाना. रिजर्व्स का टोटल 380 60. 380 किसका टोटल है? Reserves is 380 and minority interest is how much? Check whether it tallies at 1390. करेक्ट है? प्रोसेस जा रहा है दिमाग में? प्लीज.
क्वेश्चन नंबर 3, उसके पहले पेज नंबर 50, पॉइंट नंबर 5. पेज नंबर 50, पॉइंट नंबर 5. कौन सा पॉइंट पिक कर रहे हैं अभी हम लोग? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. फर्स्ट वन, ए, preliminary expenses appearing on the asset side of the holding company should be shown as it is in the CFS. We will always assume preliminary expenses to be written off within the period of 12 months, and that's why we'll show it under the head known as other current assets. Holding company का preliminary expenses holding का. और point B, this is where it starts. Preliminary expenses appearing on the asset side of the subsidiary company should be considered as a capital loss. Holding company share should be reduced from capital reserve, and outsiders share should be reduced from अपना preliminary expense अपना, और subsidiary का split between what? Holding, minority. Holding का capital reserve में negative amount और minority में negative amount. दोनों ही जगह से लेस करना है बिकॉज दिस इज अ कैपिटल लॉस. सो होल्डिंग का जो शेयर बनता है वो हम लोग अपने कैपिटल रिजर्व से माइनस करेंगे, माइनॉरिटी का जो शेयर बनता है वो माइनॉरिटी होल्डिंग से लेस करेंगे. रिपीटेशन अगेन, वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ थिंग. फर्स्ट वन, होल्डिंग कंपनी का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होल्डिंग का, और माइनॉरिटी अपना सब्सिडरी का होगा उसका स्प्लिट. और ये जो भी स्प्लिट बोल रहा हूँ ना मैं, वो वही परसेंटेज बेसिस पे. वो परसेंटेज कहाँ पे सेट हो जाएगा? अपना शेयर कैपिटल में. तो फिर उसी को कंटिन्यू रोते रहेंगे हम. फिर होल्डिंग, माइनॉरिटी, होल्डिंग कैपिटल रिजर्व से लेस, माइनॉरिटी माइनॉरिटी से लेस. आई विल इंट्रोड्यूस टू यू क्वेश्चन नंबर 3 पे वही है, और हम थोड़े अभी रिजर्व्स पे भी स्प्लिट मार रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 53. Following is a balance sheet of R&M as on 31st March 2013. First one, share capital. Second, profit and loss account. Third one, general reserve. Fourth one, liabilities on the asset side, fixed assets. Second, shares of M. Third one, current assets. And last one, miscellaneous expenses. When R purchased the shares of M, general reserve stood at 10 and profit and loss account stood at 40. Prepare consolidated balance sheet. So we have the split in the reserves now on. First one, how much is the share capital? तो अपना ही है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? नो. सेकेंड वन, 200, 80, 20. कितना आलसी इंसान हूं देखो मैम. 80, 20, 160, 40, सब वही है ना, तो मैं मेहनत थोड़ी करूंगा. चलो फिर व्हाट इज नेक्स्ट? ये 160 कहाँ जाएगा? बुक वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल. ये 40 कहाँ जाएगा? माइनॉरिटी में शेयर कैपिटल 40. आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यहाँ पे. नेक्स्ट वन, रिजर्व्स की बात करेंगे अभी. फर्स्ट वन, पहले कौन सा रिजर्व दिख रहा है? अपना रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अमाउंट बोलिए. नेक्स्ट वन, जनरल रिजर्व 100. चलो अब माइनॉरिटी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70. रीड द स्टेटमेंट बिलो. टेल मी. प्री एंड पोस्ट. प्री कितना? पक्का ना? सो प्री इज 40 एंड पोस्ट कितना? 30. फिर क्या करेंगे? प्री का एक और रिजर्व है तो ना, उसको भी प्री पोस्ट कर देता ना. फिर प्री का टोटल करेंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे. पोस्ट का टोटल करेंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे. वरना स्प्लिट बहुत बढ़ते जाएंगे हमारे. कैन वी डू दैट? मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्री पोस्ट पे आ चुका हूँ मैं. अब मैं कौन सा रिजर्व लिख रहा हूँ? तो जनरल रिजर्व का अमाउंट बोलिए आप 30. प्री कितना? सो 30 का प्री हम लोग ने लिख दिया यहाँ पे 10, और पोस्ट कितना? 20. सो व्हाट एम आई सेइंग इज कि प्री का टोटल कितना हो गया अपना? 50. पोस्ट का टोटल कितना हो गया अपना? 50. चलेगा? करेक्ट है?
कंटिन्यूएशन 50 का किस में डिवाइड करना है हम लोग को अभी, होल्डिंग एंड व्हाट, माइनॉरिटी. ये सेम भी यहाँ पे भी होल्डिंग एंड व्हाट, फर्स्ट वन होल्डिंग का शेयर 80%, इज इट 40, दिस विल गो टू कैपिटल रिजर्व, दिस इज व्हाट 10, माइनॉरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कितना 40, इज इट गोइंग टू गो टू रेवेन्यू रिजर्व्स, और ये कितना 10, 40 कैपिटल रिजर्व. रिजर्व्स किसके रिजर्व्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एम लिमिटेड. अमाउंट कितना 40. नेक्स्ट वन रिजर्व्स, अमाउंट एम लिमिटेड 40. माइनॉरिटी रिजर्व्स 20. क्लियर है प्रोसेस, कोई डाउट्स नहीं आपको. नेक्स्ट वन रिजर्व्स के बाद अमाउंट 250, टोटल करके लिख रहा हूं मैं सिर्फ अभी. यहाँ नेक्स्ट वन फिक्स एसेट्स, अमाउंट 850, इज इट टैंजिबल. नेक्स्ट वन वो कहाँ लिखे, वर्किंग नोट नंबर 1 2 10 160, इज इट 50, 50 ऑफ व्हाट, यहाँ पे 50 ऑफ गुडविल स्टैंडिंग और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व 40 स्टैंडिंग. डू यू एग्री विद दैट वन. नेक्स्ट वन करंट एसेट्स 380 प्लस 95 475, करंट एसेट्स में लिख दिया हम लोग ने 475. कोई प्रॉब्लम आपको वहां पे. नेक्स्ट वन मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अपना अपना वो आएगा अदर करंट एसेट्स, अमाउंट 10, अपना अपना है, बरोबर है. सब्सिडरी का वर्किंग नोट नंबर 7, व्हाट इज दैट, preliminary expenses, amount 5, holding 4, minority 1, 80% ना, वो सेट हो गया इधर. नेक्स्ट वन 4 कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में क्या लिखे हम लोग, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना 4 एज नेगेटिव, और माइनॉरिटी का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 एज नेगेटिव. Anything else? Question is solved. 40 minus 4 is how much? 36. 36 का क्या बैठा है, कैपिटल रिजर्व. 50 का क्या है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज इक्वल टू 50 माइनस 36, 14 ऑफ गुडविल. Is it clear? People do have a very funny habit of preparing a cost of control account. My cost of control is done. That's what I said. I'm taking a net. Answer has to match. मेरा प्रोसेस अलग है, आप अभी तक अगर कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो वो अलग है. बट अभी भी अगर आप अपने टाइप से भी करेंगे जो करना नहीं है, that's what I'm saying. Leave that backlog behind. My cost of control is very simple. Is working note number 1 and 2 का net. क्लियर है. अमाउंट कितना आ गया आपका 14, गुडविल, गुडविल दिखा रहा है मतलब इज इट इंटेंजिबल. अमाउंट कितना 14, रेवेन्यू रिजर्व्स 200 140, 340 कहाँ पे रिजर्व्स. नेक्स्ट वन माइनॉरिटी इंटरेस्ट 59 माइनॉरिटी इंटरेस्ट. टेक अ टोटल प्लीज. 700 340 59 250 1349. चेक करो कैलसी चल रही कि नहीं. चल रहे, कैलसी चेक कर रहे थे ना, तो ठीक है.
चलो थोड़ा कोई और सीरियस काम करे अभी. नोट नंबर 7. Note number 7, page number 51. First one. If on the date of acquisition of shares, fixed assets of the subsidiary company are revalued upward, the difference between the upward revaluation and book value is a capital profit. It should be added to the value of fixed assets, and the holding company share should be added to capital reserve, and outsider share should be added to. The difference in debris will be calculated from the date of acquisition to the date of balance sheet. It should be deducted from the fixed assets, and holding company share therein should be deducted from revenue reserves, and outsider share should be deducted from the the first one. If on the date of acquisition of shares, fixed assets of the subsidiary company are revalued upward. On the date of what? Acquisition, and not on the date of preparing this balance sheet. Revaluation upward जो कर रहे हैं हम लोग, वो कभी कर रहे हैं? Date of acquisition पे कर रहे हैं. Date of balance sheet पे नहीं. Balance sheet किसी और दिन बन रहा है, acquisition किसी और दिन हुआ था. Let's say the acquisition took place on 1st of Jan 2013, and I'm preparing a consolidated balance sheet on 31st December 2013. Date of acquisition 1st Jan, and preparation of balance sheet. तो एक साल पहले acquisition हुआ था. उस दिन पे मैं वो फिक्स एसेट्स को अपवर्ड रिवैल्यू कर रहा हूँ, और डेफिनेटली हमारे फिक्स एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसके फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं? सब्सिडरी का. सो रिवैल्यूएशन करना. Now for example बुक में 4 लाख लिखा है, and I am saying the revaluation was 5. So is it upward revaluation by 1 lakh? Adjustment 1, add to fixed assets. Adjustment 2, it's a capital profit. So split it. Holding company share, capital reserve. Minority का share, minority में. या तो अगर उसे इंडिविजुअली स्प्लिट नहीं करना है तो आप उसे सीधा प्री रिजर्व में ऐड कर दो, बिकॉज यहाँ से वो स्प्लिट होके चला ही जाएगा. होल्डिंग का शेयर कहाँ जाएगा? कैपिटल में. और माइनॉरिटी का शेयर कहाँ जाएगा? माइनॉरिटी में. सो मैं एकदम सिंपल 2 एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ. असेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है. एडजस्टमेंट 1, ऐड टू फिक्स्ड एसेट्स. एडजस्टमेंट 2, ऐड टू प्री प्रॉफिट्स. करेक्ट है? पर ये रिवैल्यूएशन कब किया हम लोग ने? कौन सा था वो डेट? 1st of Jan को. और हम बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? तो हमने 1 साल का डेप्री भी चार्ज कर दिया होगा, और वो डेप्री चार्ज किस पे किया होगा? 4 लाख पे. लेट्स से 4 लाख का डेप्री 10% था, तो 40,000 डेप्रीशिएशन इज चार्ज्ड, और इसीलिए आपको असेट का वैल्यू आज कितना दिख रहा होगा? 3,60,000 दिख रहा होगा. अब हम इसे पूरे रिवर्सल की बात कर रहे हैं. हमें एक्चुअली वो 4 लाख रखना ही नहीं था, हमें कितना करना था? वो 5 लाख. तो 4 से 5 पे लेके गए. सो आई एम सेइंग ऐड टू फिक्स्ड एसेट्स, ऐड टू प्री रिजर्व्स. नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट इट वाज 4 लाख, इट द डेप्री चार्ज वाज हाउ मच? 40. द डेप्री दैट शुड हैव बीन चार्ज्ड इज हाउ मच? 50. 40 इज ऑलरेडी चार्ज्ड. कैन आई से डेप्री एक्स्ट्रा टू बी चार्ज्ड इज 10? Effect 1, less from fixed assets. Effect 2, this is not pre, this is post. Revaluation on the date of acquisition किया था, तो वो तो हमें पहले रीवैल्यू करने था, इसीलिए हम लोग ने वो कंसोलिडेशन करने के लिए रीवैल्यू किया. तो उसका जो इफेक्ट जाना चाहिए वो कहाँ पे जाना चाहिए था? प्री में. पर डेप्री की बात हम कौन से ईयर की कर रहे हैं? हम पर प्री के डेप्री की थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो एक्विजिशन के बाद के डेप्री की बात कर रहे हैं. तो उसका इफेक्ट प्री में नहीं आना चाहिए, उसका इफेक्ट कहाँ पे आना चाहिए? पोस्ट. टेक्निकली स्पीकिंग, होल्डिंग का शेयर लेस फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व्स, माइनॉरिटी का शेयर लेस फ्रॉम माइनॉरिटी. बट ये करने से अच्छा है कि हम उसे पोस्ट में डाल दें. ऐड नहीं, लेस.
बिकॉज पोस्ट का फिल्टरिंग कहाँ पे होने वाला है, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड माइनॉरिटी। वरना मुझे हर एक असेट को लेके हर टाइम 4-4 5-5 पोस्टिंग करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट वर्किंग करूंगा। 1, अगर फिक्स असेट्स का अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है, ऐड टू असेट, ऐड टू पोस्ट प्रॉफिट्स, उसका एडिशनल डेप्री की सोचना पड़ेगा, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम प्री प्रॉफिट्स, पोस्ट प्रॉफिट्स। इज इट क्लियर? और अगर अभी आप फिक्स एसेट का पोजीशन देखेंगे तो एग्जैक्टली 4,50,000 दिखेगा। फिलहाल फिक्स एसेट कितना दिख रहा है आपको? जस्ट एक विजुअलाइजेशन 360। क्यों? 4 था, उस पर 40 का डेप्री चार्ज कर दिया, तो आज कितना दिख रहा है हमें? एडजस्टमेंट नंबर 1 के हिसाब से मैंने असेट्स को रीवैल्यू करके इंक्रीज बाय 1 लाख किया, इज इट 4,60,000? एडजस्टमेंट नंबर 2 पे मैंने एडिशनल डेप्री 10 चार्ज कर दिया, इज इट 4,50,000? आई होप यू अंडरस्टैंड कि 450 ही दिखना चाहिए, बिकॉज 5 है और उस पर अगर 10% डेप्री चार्ज हो रहा है तो कितना दिखना चाहिए? 450। करेक्ट है ना? फर्स्ट वन, asset revalued upward, effect 1, add to fixed assets, add to pre profits। पर जैसे ही ऐड करोगे तो सेकेंड इफेक्ट हैज टू फॉलो, कि असेट इंक्रीज कर दिया तो यार डेप्री कहाँ गया उसका, तो डेप्री की बात करें, फिर डेप्री की बात करेंगे तो एडिशनल डेप्री चार्ज करना पड़ेगा। सो इट विल नॉट बी ऐड, इट विल बी व्हाट? लेस। सो वहां का दो इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम फिक्स असेट, लेस फ्रॉम पोस्ट प्रॉफिट्स। दिस इज पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 उल्टा सोचते हैं, अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर सकते तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी कर सकते हैं ना। इफेक्ट्स आप बताइए। लेस फ्रॉम फिक्स असेट, लेस फ्रॉम, वेरी गुड। डेप्री हैज टू बी टेकन बैक ना, सो ऐड टू फिक्स असेट, सिंपल। इज इट करेक्ट? इतने ही सिंपल व्यू से देखा करेंगे इस चैप्टर को। समवेयर डाउन द लाइन मार्केट में इतना न्यूज़ है, कंसोलिडेशन, 50 क्वेश्चन भी कर लो फिर भी नहीं समझता है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। 5 क्वेश्चन करेंगे आज, आधा कंसोलिडेशन समझ चुका है। करेक्ट है ना? थिंग्स हैव टू बी सिंप्लीफाइड एंड टेकन इन दैट सिंपल ऑर्डर। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। First, from the following balance sheet of M Limited and its subsidiary N Limited, drawn up to 31st March 2004, prepare a consolidated balance sheet as on that date, having regards to the following. Reserves and profit and loss account of N stood at 25,000 and 15,000 respectively on the date of acquisition of 80% shares of M on 1st April what? Balance sheet कौन से डेट का बना रहे हो? एक्विजिशन कौन से डेट पे हुआ है? और 1 अप्रैल को P&L अकाउंट एंड रिजर्व्स का बैलेंस दिया है। कैन आई से दिस अप प्री बेसिकली? इसके बाद जो भी रिजर्व्स में दिखेगा वो हमारा क्या होगा? पोस्ट। मशीनरी द बुक वैल्यू 1 लाख एंड फर्नीचर द बुक वैल्यू 20 ऑफ N वेर रीवैल्यूड एट 1,50,000 and 15,000 respectively on 1/4/2003 for the purpose of fixing the price of its shares. The rate of depre मशीनरी कितना परसेंटेज? 10 एंड फर्नीचर इज कितना परसेंटेज? मशीनरी जिसका बुक वैल्यू 1 लाख था और फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू 20,000 था, फर्नीचर को साइड पे हटाओ, सिर्फ मशीनरी पे ध्यान दो। मशीनरी का बुक वैल्यू कितना था? कभी था? 1 अप्रैल 2003 पे 1 लाख था, उसको रीवैल्यू कितना किया हम लोग ने? आगे चल के दे आर सेइंग रेट ऑफ डेप्री मशीनरी पे कितना? टू द बैलेंस शीट इमीडिएटली। एन लिमिटेड का बैलेंस शीट, एन लिमिटेड का मशीनरी देखो 90 क्यों दिख रहा है? विजुअलाइजेशन आ रहा है? 1 लाख था, हम लोग ने 10% डेप्री चार्ज कर दिया तो 90 दिख रहा है। 90 ही दिखना चाहिए था। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वो 1 लाख तो था ही नहीं, वो कितना था? तो मैं सिंपल सोच रहा हूं कि फिक्स एसेट का रिवाइज पोजीशन क्या होना चाहिए। इफेक्ट्स बिफेक्ट्स तो मैं सब बाद में सोच रहा हूं। इज इट 1,50,000 होना चाहिए था? वो 1 साल पहले उस पे अपने को 10% डेप्री चार्ज करके कहां पे लेके आना है? मैं रिवाइज बैलेंस शीट बनाऊं ना, मेरे को उसका मशीनरी 135 पे दिखना चाहिए। आर वी क्लियर?
हाँ, बट प्रोसेस फॉलो होना चाहिए. That's what I'm saying. You cannot directly jump from 90 to 135 and say directly add 45. ऐसा नहीं कर सकते हो आप. Because revaluation जो हो रहा है ना, वो प्री था, और डेप्री का जो एडजस्टमेंट जा रहा है ना, वो पोस्ट था. और बाई नाउ ना थोड़ा बहुत दिमाग में सेट कर लो कि बॉस अगर एडजस्टमेंट नंबर 6 अपना वर्किंग नोट नंबर 6 क्रैक हो गया ना, तो कंसोलिडेशन हो गया. पूरा ध्यान ना सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 6 पे है, पूरे चैप्टर का. आई एम नॉट इवन सेइंग क्वेश्चन नंबर 4 का, आई एम सेइंग पूरे चैप्टर में अगर हम रिवाइज शेड्यूल 6 के हिसाब से ये नोट 6 क्रैक कर लेना तो काम खत्म. अभी क्लियर? वो प्री और पोस्ट का क्लासिफिकेशन ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एडजस्टमेंट कैसे जाएगा? वो 1 लाख था, उसको कहां लेके जाना है? एड 50, एड 50. सेकेंड, डेप्री 150 पे 10%, 15 होना चाहिए. ऑलरेडी कितना चार्ज कर दिया है, तो रिवाइज कितना चार्ज करना है? 5 और चार्ज करना है, तो लेस फिक्स एसेट्स, लेस. एकदम करेक्ट है. मशीनरी सोच लिया जरा, चलो फर्नीचर सोच लेते हैं. हाउ मच इज फर्नीचर? दे सेड वाज 20. उसका डेप्रीशिएशन वैल्यू कितना था? डेप्री 20,000, 15% इज 3,000. आई कैन सी 17,000 देयर. दिख रहा है ना 17? वो बोल रहे वो 20 तो था ही नहीं, वो था कितना? 15 पे 15% चार्ज करो. 15 पे 15% सर 2,000. 15,000 माइनस 2,000 250. 12. तो 12,750 कहां दिखना चाहिए अपने को? रिवाइज्ड बैलेंस शीट में दिखना चाहिए. हम कैसे काम करेंगे? फर्स्ट वन 20 था, कहां लेके जाना है? 15 रीवैल्यू करना है. तो क्या करोगे सबसे पहले? लेस फ्रॉम फिक्स एसेट, लेस. डेप्री ऑलरेडी कितना चार्ज करके बैठे हो? 3. चार्ज कितना करना चाहिए था? तो एड टू फिक्स एसेट कितना? 750. एड टू पोस्ट. एंड यू कैन चेक आउट द वैल्यूज ऑल्सो. हम पहले 5,000 क्या कर रहे थे? एड या लेस? लेस. 2250 नहीं 750 क्या कर रहे थे? ऐड. सो आप इफेक्ट देखोगे तो एग्जैक्टली वही वैल्यू पे पहुंच जाओगे जहां हमें पहुंचना है. इज इट करेक्ट? नेक्स्ट वन कंटिन्यूएशन. और कुछ भी नहीं है. बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स है, पीएनएल है, क्रेडिटर्स है, असेट्स में मशीनरी, फर्नीचर, अदर असेट्स, शेयर्स, एंड लास्ट वन इज व्हाट? बस शेयर्स. कैन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट? फिर से एक बार सिर्फ देखोगे आप यहाँ पे. हम लोग शायद नेक्स्ट क्वेश्चन से साथ में करने लगे, बट चांसेस बहुत कम है. स्टार्ट. फर्स्ट वन, शेयर कैपिटल कितना? होल्डिंग कौन है? एम होल्डिंग है. लिखो, प्रैक्टिस करो जरा. होल्डिंग सब्सिडियरी भूल गए, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा, फिर तो लिखा ही नहीं है ना. क्वेश्चन नंबर भी बदल देता हूं मैं. 4. फर्स्ट वन 6 लाख अपना शेयर कैपिटल अपना ना. अमाउंट बोलो. चलो लिख दिया. अब कहाँ चले? वर्किंग नोट नंबर. शेयर कैपिटल कितना? 1 लाख. होल्डिंग का शेयर 80% इज होल्डिंग. सो इज इट 80,000? तो फिर सब्सिडरी का दैट इज माइनॉरिटी इज व्हाट? 20. गॉट दैट? 80 कहाँ पे? बुक वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल. अमाउंट 80, 20. गॉट दैट? नेक्स्ट वन सेकेंड, रिजर्व्स. अपने रिजर्व्स. सो रिजर्व्स अमाउंट बोलिए. नेक्स्ट वन पीएनएल. अमाउंट 1 लाख. नेक्स्ट वन उधर है ना रिजर्व्स. किसका? एन का ना. ये जो रिजर्व का वर्किंग नोट है वो एन का ही है. रिजर्व्स कितना है उसका? रिजर्व्स 75 को क्या करूं मैं? स्प्लिट. हाउ मच इज प्री? ऊपर लिखा है, पक्का पढ़ रहे हो? 25. पोस्ट कितना? 50. नेक्स्ट वन पीएनएल अकाउंट कितना है टोटल?
25, प्री कितना 50, 5015, 50 कहाँ से होगा, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। पोस्ट कितना 10, टोटल 25, 15, 40, 60। पर इसको स्प्लिट नहीं करेंगे अभी, बहुत काम करना है इस पे हमें, करेक्ट ना। नेक्स्ट वन, creditors. Creditors are what? Current liabilities. So we'll say current liability, और current liability में the head will be known as what? Trade payables. क्या करना है इसको? Add कर दो 207, 2,07,000. Got that? Next one, machinery. Working note number 7. Fixed assets, basically tangibles. First one, machinery. अपनी कंपनी का नाम क्या है? M. कितना? इसमें कोई प्रॉब्लम? फिर कौन आ रहा है? N. इसमें कोई प्रॉब्लम? अमाउंट कितना है? 90. एग्जिस्टिंग दिख रहा है हम लोग को। Are we clear with that one? Next one, machinery के बाद furniture. M 150, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। N 17, and I guess we have an adjustment with this. And यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे। Is it clear? Next one, fixed assets के बाद what is next now? Other assets. Can I assume this to be other current assets? So I'll just say current assets, other assets basically. What is the amount? 5. Direct add कर दिया तुम लोगों ने. Very good. Next one. ये कहाँ जाएगा? Book value 1,60,000 minus 80 is equal to 80. क्या मिल गया ये हम लोग को? Goodwill. It's a standing goodwill as of now. Are we clear? चलो कंटिन्यूएशन. व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? फिक्स्ड एसेट्स का ही वर्किंग है. वर्किंग नोट नंबर 8 भी उसी का बना रहा हूँ. फिक्स्ड एसेट्स, फर्स्ट वन द करंट सिनारियो, द रिवाइज पोजिशन. फर्स्ट वन इज व्हाट? मशीनरी. व्हाट इज द करंट सिनारियो यू आर लुकिंग एट? 90 आया कैसे होगा? 1 लाख माइनस 10, तो एग्जिस्टिंग कितना दिख रहा है तुम्हें? 90. हमें ये 1 लाख को रिवाइज करके कहाँ लेके जाना है? 150. रिवाइज सिनेरियो इज 150. इज इट क्लियर? सो 1 लाख से 150 लेके जाना है. दो इफेक्ट. इफेक्ट नंबर 1, एड 50, एक इफेक्ट हुआ. दूसरा, एड टू प्री. एड व्हाट? मशीनरी 50. Are you understanding this? Next one. अगर 150 है तो 15,000 डेप्री होना चाहिए. And the exact position right now should be 135, 10, 15. The difference is how much? 5. Are we going to charge extra डेप्री or we have to take it back? Charge extra 5,000. Effect number 1. Less. कितना? 5. 90 plus 50 minus 5. 135. तुमने यही बोला था, यही होना चाहिए. करेक्ट है. और दूसरा इफेक्ट इसका, लेस द मशीनरी. अमाउंट कितना? 5. सिंपल है वर्किंग्स. नेक्स्ट वन, मशीनरी के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव नाउ? तो फर्नीचर. फर्नीचर की बात करें, व्हाट इज द करंट पोजीशन दैट यू कैन सी? 17 कैसे आया होगा? 20 minus 3 is 17. That's what you can see there. That visualization is जरूरी कि यहाँ पे 17 दिख रहा है, बट वो 3 के डेप्री के बाद है. तो ओपनिंग में एक्चुअली था कितना? वो 20. अच्छा, रिवाइज क्या करना है? 15. चलो इफेक्ट 1, 20 से 15 लेके जाना है. यहाँ पे कितना? लेस कितना? 5. चलो एक इफेक्ट हुआ. दूसरा, प्री पोस्ट. प्री लेस व्हाट?
तो पहले यहाँ पे माइनस किया तो तुमको बुरा लगता क्या? अच्छा ऐसा है ना, पहले वही बोला था तो वही करना है अपने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन 15,000 के बाद 15% कितना उसका? 2250. So what's the difference in debris? Is it 750? Your value has to be what? 12. 750 दिखना चाहिए अभी। 750 extra debris or taken back? Add 750. चेक करो कि आंसर आ रहा है 12,750। पक्का लिख दूं? चलो ये एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट प्री और पोस्ट। एड व्हाट? फर्नीचर 750. Is it clear? Can you give me the total of tangible assets now? 3 lakh plus 135, 150, 12,750. 5,97,750. Clear है? Can I post it? Tangible assets. Tangible 5,97,750. Got it? Can I take a net of those amounts now? First one 40 plus 50. 90 minus 5, 85 का स्प्लिट करो। चलो 80 और 20 में 68। 68 किसका शेयर है? होल्डिंग कंपनी का शेयर कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व जाएगा। ये तो माइनॉरिटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 माइनस 5 प्लस 750, 55। 55 750 को स्प्लिट करो होल्डिंग और माइनॉरिटी में। 44 कहाँ जाएगा ये? एंड माइनॉरिटी का शेयर 11। 150 इज माइनॉरिटी ना, माइनॉरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17,000 प्लस 11,000 150। 28,150 कहाँ पे जाएगा? 28,150 माइनॉरिटी। 28,150। कोई डाउट्स आपको? कैपिटल रिजर्व, रिजर्व्स किसके रिजर्व्स की बात कर रहे हो आप? N Limited. Amount 68. Next one reserves. ये किसके रिजर्व्स की बात कर रहे हैं हम लोग? फिर से N. Amount 44,600. Goodwill 80. Capital reserve. Net cost of control 12,000. 12,000 क्या? Goodwill. Intangible asset. Goodwill 12. Are we correct? Next one 2 lakh, 1 lakh 44,600. Is it 3 lakh 44,600? किसका टोटल मिला आपको ये? रिजर्व्स 3,44,600. Got that? Next one 20,000 plus 28,150. 48,150. 48,150 is the minority interest. Please take the totals and tell me tallies on the other side. Is it clear? Is the process clear? Please.